ایک ناول پیش کر رہا ہوں۔ شگفتہ پروین کا ناول ہے، رفیق حیات عنوان ہے۔ اس جوڑے کی داستان جسے اپنے مکان سے بے انتہا محبت تھی، محبت، ایثار و قربانی کی انوکھی داستان۔ سماعت فرمائیے۔ سمینہ جب اپنے والدین سے ملنے ان کے گھر آئی، اس وقت اس کے ابو عاطف حسین بستر میں تھے۔ بستر ان کی واحد پناہ گاہ تھا۔ صرف بیماری کے عالم میں ہی نہیں، عام حالت میں بھی عاطف حسین جب کسی عارضے کے باعث یا عارضے کی محض آہٹ سن کر ہی بستر میں پناہ گزین ہو جاتے تھے، تو سمینہ کی امی صابرہ بیگم کو کچن سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے کچن تک کے سینکڑوں چکر لگانے پڑتے تھے۔ جبکہ کچن گھر کے ایک سرے پر تھا، وہاں سے بیڈ روم تک آنے کے لیے طویل و عریض صحن، برآمدہ اور ہال عبور کرنا پڑتا تھا۔ رات تک صابرہ بیگم اتنی تھک جاتی تھی کہ بستر میں لیٹے ہوئے بھی ان کی کرائیں نکل جاتی تھی، اور صبح بستر سے اٹھنا بھی ان کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہوتا، کیونکہ رات میں بھی انہیں آرام تو نصیب ہوتا نہیں تھا۔ عاطف حسین کے اٹھنے کی آواز سن کر وہ انہیں سہارا دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اندیشہ رہتا تھا کہ ادھر ادھر جانے کی کوشش میں کہیں وہ گر نہ پڑیں۔ سمینہ پہلے تو کچھ دیر تک اپنے ابو کے پاس بیٹھی ان سے ان کی مختلف بیماریوں کا حال سنتی رہی اور ان کا سر دباتی رہی۔ پھر جب انہوں نے آنکھیں بند کر لی تو اٹھ کر ماں کے پاس چلی آئی۔ صابرہ بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ سمینہ نے غور سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ امی، آپ بھی کبھی آرام کر لیا کریں، جب دیکھو کام میں مصروف رہتی ہیں، سمینہ نے ماں سے مخاطب ہو کر شکایتی سے انداز میں کہا۔ مجھے تو آپ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ 75 سالہ صابرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی ادھڑ عمر بیٹی سمینہ کی طرف دیکھا اور طویل سانس لے کر کہا، طبیعت تو میری ٹھیک ہی ہے، مگر تمہارے ابو سمجھتے ہیں کہ میں ابھی بھی 25 سال کی ہوں، کیونکہ میں ان سے ذرا بہتر دیکھ سکتی ہوں اور سن سکتی ہوں، بوقت ضرورت انہیں سہارا دے کر چلا سکتی ہوں اور بیماری میں ان کی تیمارداری کر سکتی ہوں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ میں ان سے صرف 2 سال چھوٹی ہوں اور میرے انجر پنجر شاید ان سے زیادہ ڈھیلے ہیں۔ ایک مرتبہ جب انہیں خاصا شدید فلو ہوا تھا تو سمینہ نے زبردستی ان کے لیے رات کو ڈیوٹی دینے والی ایک نرس رکھوا دی، مگر 2 دن بعد ہی انہیں نرس کو رخصت کرنا پڑا۔ نرس کی موجودگی سے تمہارے ابو کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، صابرہ بیگم نے سمینہ کو بتایا، اس بچے کی طرح جس کی ماں کسی دوسرے کے سپرد کر کے چلی گئی ہو۔ میرے خیال میں تو ابو کو اس تنخواہ کے تصور سے گھبراہٹ ہو رہی تھی جو نرس کو دینی تھی۔ سمینہ نے منہ بنا کر کہا، ہاں، یہ وجہ بھی تھی۔ صابرہ بیگم نے تسلیم کیا، ویسے بھی نرس کی موجودگی سے مجھے کوئی فائدہ تو پہنچا نہیں ہے۔ ہر 5 منٹ بعد تمہارے ابو اسے یہ دیکھنے کے لیے میرے پاس بھیج دیتے تھے کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں، اور میں ہر بار یہ سمجھ کر اچھل کر بیٹھ جاتی تھی کہ شاید ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور سارا دن وہ مجھ سے شکوہ کرتے رہے کہ میں کیسی بے پرواہ بیوی ہوں جس نے انہیں ایک اجنبی عورت کے ساتھ کمرے میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ مکان چونکہ ان کا آبائی تھا، لہذا پرانی وضع کا اور خاصا طویل و عریض تھا، اس لیے عاطف حسین کی صحت مندی کے دنوں میں بھی صابرہ بیگم کے مسائل تقریباً جوں کے توں ہی رہتے تھے۔ ان کی بھاگ دوڑ میں کوئی خاص کمی نہیں آتی تھی۔ عاطف حسین ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ وہ گریڈ 16 سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ہمیشہ دیانتداری کے اصول پر کاربند رہے، لہذا عمر بھر سوکھی تنخواہ پر ہی قناعت سے گزارا ہوتا رہا۔ فضل ربی سے وہ کوسوں دور ہی رہے،
उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी खनात पसंदी की आदत कंजूसी में तब्दील होती चली गई। बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल ही बखील हो गए। वैसे भी बुढ़ापा उम्र का एक अजीब ही दौर होता है। पेशतर इंसानों की आदत इस दौर में अक्सर तब्दील हो जाती है और बाज़ अफराद बुढ़ापे को पहुँचते पहुँचते शिद्दत पसंदी की तरफ मायल हो जाते हैं। आतिफ हुसैन का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। समीना इनकी वाहिद औलाद थी। इसने एक आम से सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास किया था। इंटर और फिर बीए इसने प्राइवेट तौर से किया था। बीए के इम्तिहान से फारिग होते ही इसके लिए मंसूर अहमद का रिश्ता आ गया और ज़रूरी छानबीन के बाद समीना की शादी सादगी से मंसूर अहमद के साथ हो गई। अब वो 3 नौजवान बच्चों की माँ थी। वो अक्सर अपने वालिदैन से मिलने के लिए आती रहती थी और कभी कभार इनके पास ठहर भी जाती थी। ऐसा उमूमन इन दोनों होता था जब साबिरा बेगम आतिफ साहब की तीमारदारी करते करते खुद बीमार हो जाती थी। समीना का घर सोसाइटी के इलाके में था, जबकि ये मकान मज़ाफ़ाती इलाके में था। रिटायरमेंट के बाद चूँकि आतिफ हुसैन का सारा वक्त घर पर ही गुजरता था, लिहाजा वक्त गुजारी के मशगले के तौर पर इन्हें घर के काट कबाड़े से दिलचस्पी पैदा हो गई और पुरानी चीज़ों की मरम्मत करने का शौक़ पैदा हो गया। उन्होंने घर की छत और कोनों खुदरों में बरसों से जमा शुदा काट कबाड़ा को ला कर सहन में जमा करना शुरू कर दिया और जब सहन में काट कबाड़ का खासा अंबार लग चुका तो बरामदी की बारी आ गई। तरह तरह की लकड़ियाँ, टूटी फूटी कुर्सियाँ, मेज़ें, खिड़कियों के नाकारा चौखटें, तख्ते, लोहे की टूटी फूटी चीज़ें। अगर ये कि सहन और बरामदे में ज़माने भर की नाकारा चीज़ों के ढेर लग चुके थे। ये और बात है कि किसी भी टूटी फूटी चीज़ की पूरी तरह मरम्मत होने की नौबत कभी नहीं आ सकी थी, क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त किसी न किसी आर्ज़े के सिलसिले में बिस्तर पर ही गुजरता था। अंबार हद से बढ़ा तो साबिरा बेगम ने चुपके से कुछ चीज़ें उठाकर पिछले शेड में पहुंचा दी, लेकिन आतिफ साहब फ़ौरन इन्हें वापस उठा लाए और बड़ी इज्जत और एहतराम से दोबारा बरामदे में रख दिया और साथ ही बीवी को डांट भी पलाई। तुम चाहती हो कि पिछली दीवार फांद कर शेड में से चोर इन चीज़ों को उठा ले जाएं? चोर इतने अहमक नहीं हो सकते, साबिरा बेगम ने जवाब दिया। लेकिन चंद दमे की हल्की बहस के बाद इन्होंने महसूस कर लिया कि टूटी चीज़ों का तस्करा हक़ारत से करने पर इनके शौहर के अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ मच रही है। चुनाचे इन्हें और इनके काट कबाड़ को इनके हाल पर छोड़ दिया। अलबत्ता इस वक्त समीना आई तो उन्होंने हसरत भरे लहजे में इससे इतना ज़रूर कहा, अगर हमारा घर छोटा होता तो मजबूरन तुम्हारे अब्बू को काट कबाड़ा फेंकना पड़ता, लेकिन आतिफ साहब को तो घर का तवील व अरीज़ देखकर ही खुशी होती थी। अक्सर औक़ात वो तवील व अरीज़ कमरों में बला मकसद इधर उधर फिरते रहते थे। बड़ा कमरा जो ड्राइंग रूम भी था और डाइनिंग रूम भी ख़ास तौर पर इन्हें बहुत पसंद था। हालांकि वो किचन से इतना दूर था कि साबिरा बेगम खाना लाने और ले जाने ही में हलकान हो जाती थी और आतिफ साहब को वो कमरा शदीद इसलिए पसंद था कि इसकी खिड़कियों से वो बेक वक्त बाहर का नज़ारा भी कर सकते थे। इसके अलावा बरामदे और सहन में फैले हुए काट कबाड़े के अजीम शान ख़जाने पर भी नज़र रख सकते थे। कभी कभार साबिरा बेगम काम करते करते ज़्यादा थक जाती थी तो पड़ोस में काम करने वाली मुलाजिमों को सफाई वगैरह के लिए बुला लेती थी। आतिफ साहब इसे देखते ही बड़बड़ाने लगते थे, उफ खुदाया, ये औरत है या पहाड़, ऊपर से इतना तेज़ चलती है, खरीद से गुजरती है तो मैं डर जाता हूँ और गिरते गिरते बचता हूँ। जैसे वह सफाई शुरू करती थी आतिफ हुसैन इसके ताक़ब में लग जाते थे। वो हर जगह इनके पीछे पीछे जाते थे क्योंकि इन्हें धड़का लगा रहता था कि सफाई के दौरान में कोई चीज़
चुरा न ले। पूरी तरह इसकी निगरानी करने के बावजूद इन्हें इत्मीनान नहीं होता था। वो उलझन आमिज लहजे में कहते थे, अगर इसका कुछ चुराने का इरादा नहीं होता तो वो इतना बड़ा सा थैला साथ लेकर क्यों आती है। और बिलाशुबा इस बेचारी का हौसला था कि दोबारा इनके यहाँ काम करने के लिए आ जाती थी, क्योंकि एक तरह इसे दो मसाइब का सामना करना पड़ता था। एक तो सफाई के मशक्क़त और दूसरे आतिफ साहब की नापसंदीदगी। साबिरा बेगम बीमार हो जाती थी तो एक आधा दिन तो आतिफ साहब भी इनकी तीमारदारी करने की कोशिश करते थे, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि किचन से एक आधा प्याली चाय बनाकर ले आते थे। मगर इसमें भी एक खबात थी। इनका हाथ इस बुरी तरह कांपता था कि आधी चाय तो रास्ते में ही छलक जाती थी। फिर समीना आ जाती थी और आते ही वो हर चीज़ तनकीद शुरू कर देती थी। टब में चादरें भीगी हुई देखती तो पूछती, अम्मी आप चादरों को हाथ से क्यों धोती हैं, वॉशिंग मशीन से क्यों नहीं धोती? तुम इनकी हालत नहीं देख रही? साबिरा बेगम हाँ भर कर कहती, वॉशिंग मशीन तो इन्हें तार तार कर देगी। एक बार समीना ने इन चारों को करीब से देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हर चादर में किसी न किसी नए कपड़े का अहम रंग पेवंद सलीके से लगा हुआ था, जो करीब से देखने पर ही नज़र आ रहा था, और चादर को इस तरह संभाले रखने की कोशिश कर रहा था जैसे बूढ़ी अम्मा अपने खुम्बे का शहराजा बिखरने से बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हो। अम्मी जान, इन चादरों को तो अब आप अजायब घर में रखवा दें, समीना ने मशवरा दिया। साबिरा बेगम ने इसे नहीं बताया कि चादरों का एक जोड़ा और वार्डरोब में रखा है, जिसकी अभी पैकिंग भी नहीं खुली। आतिफ हुसैन के साथ ज़िंदगी के इतने बरस गुजार कर अब वो भी बकील हो गई थी। अपने माली हालत की वजह से हर मामले में किफ़ायतशारी बरतते अब कंजूसी इनकी आदत बन गई थी। वैसे भी आतिफ हुसैन साहब बेगम को इतनी मुश्किल से अखराजात के लिए रकम देते थे कि इन्हें तो मजबूरन भी तमाम मामलात में कंजूसी से काम लेना पड़ता था। जैसे आतिफ साहब किफ़ायतशारी का नाम देते थे, लेकिन समीना इनकी तमाम किफ़ायतशारियों पर आनी फेरने पर तुली रहती थी। इस रोज़ भी भिन्नाई हुई बेडरूम में दाखिल हुई और सख्त लहजे में बोली, अम्मी बाथरूम में गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी बच्ची, हम गीज़र हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलाते हैं, जब तुझे और तुम्हारे अब्बू को नहाना होता है या मुझे कपड़े धोने होते हैं। बाकी दिनों में हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। वो सर्दियों के दिन थे और शायद दिसंबर का महीना था। समीना बाप की तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई, अगर आप गीज़र नहीं चलाएंगे और मुझे गर्म पानी नहीं मिलेगा तो मैं आज ही वापस चली जाऊंगी और आइंदा यहाँ नहीं आऊँगी। आतिफ साहब के दिल पर न जाने क्या गुजरी, मगर तुरंत वो करन उन्होंने इस हिदायत पर अमल कर ही डाला। दूसरे रोज़ समीना का मूड खुशगवार था। इसने मुस्कुराते हुए माँ से पूछा, सुबह ही सुबह गर्म पानी से वज़ू करने में मज़ा आया अम्मी? हमें तो ठंडा पानी इस्तेमाल करने की आदत है। तुम इसलिए चिल्ला उठी कि तुम आदी नहीं हो। साबिरा बेगम ने जवाब दिया, अम्मी आप लोगों के आराम उठाने का वक्त है, परेशानियां बर्दाश्त करने का नहीं। मगर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों पहले से भी ज़्यादा किफ़ायतशार बल्कि कंजूस होते जा रहे हैं। दोनों कमज़ोर हैं, जल्द बीमार पड़ते हैं। क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप लोग आरामदा चीज़ों से कुछ इस्तेफ़ादा करें? समीना नागवारी से बोली, बैंक में आपके खासी रकम मौजूद है, इसे अपने आराम पर खर्च क्यों नहीं करते? आप तुम्हें कौन समझाए कि बुढ़ापे में कैसी कैसी हंगामी हालात के लिए रकम बचा कर रखनी पड़ती है? आतिफ साहब बोले, कभी घर की मरम्मत करना पड़ती है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, और फिर ज़िंदगी का क्या भरोसा? तहज्जुद तक तकफीन का इंतज़ाम भी तो करके रखना पड़ता है। मरने के बाद भी हम किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते। ये दूसरी बात थी कि समीना ने मकान के सिलसिले में इन्हें कुछ भी खर्च करते नहीं देखा था। बहुत सी चीज़ें मरम्मत तलब थी, मगर पुश्तम का काम चल रहा था।
एयर कंडीशन वगैरह का तो जिक्र ही क्या। इस साल मामूल से ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। वो सर्दी से ठिठुरते रहते थे, मगर कभी कभार इस्तेमाल करने के लिए एक मामूली सा हीटर भी लाकर बेडरूम में नहीं रखते थे। रात को कई कई बोसीदा और पुराने कंबल ओढ़कर पड़े रहते थे। समीना ने अपने घर से हीटर लाकर बेडरूम में रख दिया। इधर गीज़र का इस्तेमाल भी होने लगा था। इतनी बिजली और गैस खर्च होते देखकर आतिफ साहब पर पहले से ज़्यादा रशातारी रहने लगा था। एक रोज़ समीना इनके खैर आफियत दरियाफ्त करने आई तो देखा कि गीज़र भी बंद था और हीटर का स्विच भी ज़ाहिर है कि ऑफ था। साबिरा बेगम सर्दी से कपकाते हुए ठंडे पानी से बर्तन धोने में मसरूफ़ थी और आतिफ हुसैन सर से पाँव तक गर्म कपड़े में मलबूस थे। आपने दोनों चीज़ें क्यों बंद कर दी? समीना ने आंखें निकाली। इन चीज़ों में बिजली और गैस नहीं जलती, नोट जलते हैं नोट। आतिफ साहब ने नाक से शूं शूं करते हुए कहा। ज़रा इसे आराम की खातिर इतनी रकम बर्बाद करना पागलपन है। लेकिन अम्मी को सर्दी लग रही है और आज तो धूप भी नहीं निकली। वो ठंडे पानी से काम करने के बाद कुछ देर धूप में ही बैठ जाएं। समीना ने कहा, तुम्हारी अम्मी को सर्दी इसलिए लगती है कि ये गर्म कपड़े नहीं पहनती। आतिफ साहब ने उल्टा बीवी को कसूरवार ठहराया। हाँ, इन्हें चाहिए कि आपकी तरह पुराने सड़े हुए कोट पैंट, ऊनी जराबें, कंटोप और फौजी बूट पहना करें। समीना ने जलकर कहा। इस पर आतिफ साहब मुस्कराए बगैर न रह सके। समीना ने इनका मूड बेहतर देखकर हीटर ऑन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन खुद साबिरा बेगम ने ही इसे मना कर दिया। रहने दो समीना, मैं इस सिलसिले में पहले ही तुम्हारे अब्बू से ना जाने कितनी बातें सुन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि किसी दिन मैं आऊँगी तो आप दोनों सर्दी से अकड़ा हुआ पाऊँगी। समीना ने कहा, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि 3 साल बाद कराची में इतनी शदीद सर्दी की लहर आई है और अगले 1 हफ्ते तक मौसम में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मैंने अखबार में एक मजमून भी पढ़ा है कि बूढ़े लोगों को बाज़ औक़ात एहसास भी नहीं होता कि सर्दी इनके रगों पे में किस हद तक सरायत कर रही है, हत्ता कि इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। समीना ने इन दोनों को मजमून भी पढ़वाया, लेकिन इन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कभी कभी समीना का शौहर और बच्चे भी इनके साथ आ जाते थे। दोनों मियाँ बीवी गर्मजोशी से दामाद और नवासों का इस्तेमाल करते। घर में एक शोर सा पपा हो जाता था। मंसूर आया है, बच्चे आए हैं। दोनों मियाँ बीवी दामाद से बातें करने के लिए बेचैन रहते। दोनों इसे अपनी अपनी तरफ खींचते थे। मंसूर था भी इनका बड़ा हमदर्द। वो बहुत अच्छा इंसान था। मकान का टैक्स वगैरह या किसी बिल के मामले में कोई उलझन आ पड़ती तो वही भाग दौड़ करता। वो एक तरफ से इनका कारोबारी मशीर भी था। इसकी और नवासियों की खातिर मदारत के लिए आतिफ साहब बाज़ार से मुख्तलिफ़ चीज़ें लाने का इरादा ज़ाहिर करते, मगर इन्हें याद ही नहीं आता कि इन्होंने अपना बटुआ कहाँ रखा है। वो बहुत तलाश करते, लेकिन वो इन्हें मिलता ही नहीं था। मजबूर वो चाय पर ही इत्तफा करते और इस दौरान में आतिफ साहब दुनिया के हर मौजू पर मंसूर की मालूमात में काबिल कदर इजाफा करना शुरू कर देते थे। सियासत से लेकर टमाटरों के भाव तक वो तमाम मौज़ूआत पर मंसूर को लेक्चर देते और मंसूर इस दौरान में खामोशी से अखबार पढ़ता रहता। रोज़ बरोज़ आतिफ हुसैन में दूसरों की बात सुनने का शौक़ कम और अपनी बात सुनाने का शौक़ ज़्यादा होता जा रहा था। साबिरा बेगम इस दौरान में बेटी और इसके बच्चों से बातों में मसरूफ़ रहती। वो लोग जानने लगते तो दरवाजे तक भी आतिफ हुसैन और साबिरा बेगम की बातें जारी रहती। दरवाजे पर पहुंचकर भी इन्हें कोई ना कोई मसला याद आ जाता और कई मिनट के लिए नए जोश और खरोश से बातें शुरू हो जाती। साबिरा बेगम को एहसास था कि ये सब बेटी और दामाद को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोकने के बहाने हैं। बाल आखिर ये बहाने भी ख़त्म हो जाते और इन्हें समीना और मंसूर को खुदा हाफिज़ कहना ही पड़ता। इनके जाने के बाद एक बार फिर वही घर की वीरानी होती और वही आतिफ साहब की शिकवी और शिकायतें। एक रोज़ समीना और मंसूर आए तो इनके पास रोल हुआ एक बड़ा सा कागज़ भी था और बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे।
इत्मीनान से बैठने के बाद उन्होंने वो कागज़ आतिफ साहब और साबिरा बेगम के सामने मेज़ पर फैला दिया। ये एक कच्चा नक्शा था जिसके मुताबिक इस मकान के दो बड़े पोर्शनों में तकसीम किया जा सकता था। एक पोर्शन बड़ा होता और दूसरा छोटा, यानी इनके रहायशी रकबे में कोई कमी ना आती बल्कि सहूलतों में इजाफा हो जाता और इजाफाती हिस्सा भी तैयार हो जाता। बड़ा पोर्शन इनके बेडरूम, डाइनिंग और एक नए किचन पर मुश्तमिल होता जो एक सीध में होते। छोटा पोर्शन किराए पर उठाया जा सकता और इस किराए से ही मरम्मत और तामीर के अखराजात निकल आते। ये नक्शा मंसूर के एक आर्किटेक्ट दोस्त जाकिर ने बनाया था। आपने देखा? समीना नक्शे पर उंगली रखते हुए पुरजोश लहजे में बोली। आपका नया किचन बरामदे में महज थोड़े से खर्चे से तैयार हो जाएगा और इस तरफ ड्राइंग रूम से मुफसिल होगा, दूसरी तरफ एक कदम बाहर निकालेंगे तो शहर में पहुंच जाएंगे। किचन से ड्राइंग रूम तक खाना ले जाने में कितनी आसानी हो जाएगी। किसी खुले हिस्से से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। ज़रा सोचें कितना आराम हो जाएगा। साबिरा बेगम ये सब कुछ इश्तियाक से सुन रही थी। वो खदरे आमादगी से सर हिलाते हुए बोली, ख्याल तो अच्छा है, आपकी क्या राय है? उन्होंने शोहर को मुखातिब करते हुए पूछा। हाफिज साहब अब तक समझ ही नहीं पाए थे कि नक्शा है किस चीज़ का। बल्कि जब बात इनकी समझ में आई तो इनकी आंखें हैरत से फैल गई। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? बल्कि वो कांपती हुई सी आवाज़ में बोले। इस तोड़फोड़ के दौरान सारे मकान में दौड़ें पड़ जाएंगी। 50 मजदूर मिस्त्री यहाँ महीनों के लिए डेरे डाल देंगे और उठते बैठते हमारी चाय पीते रहेंगे और ये फिर किराएदार नहायत अहमकाना ख्याल है। अबू समीना फौरन बोली, एक उम्दा किस्म का कमरा जिसके साथ कुछ और बाथरूम की सहूलत मैसर हो फौरन किराए पर उठ जाता है और फिर मकान मालिक सर पकड़े हमेशा रोता ही रहता है, क्योंकि किराएदार या तो हमेशा के लिए मकान पर कब्जा कर बैठ जाता है या फिर मकान की हालत तबाह करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। आतिफ साहब तंजिया लहजे में बोले। और ये बरामदे में किचन वाली तजवीज़ भी बिल्कुल फजूल है। गर्मियों में सारा घर इसकी वजह से गर्म हो जाएगा, सारी इज्जत कमरों में भर जाया करेंगी। अंकल, मंसूर ने तहम्मुल से कहा, आर्किटेक्ट इस किस्म के मसाइल बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। मैं किसी रोज़ जाकिर को यहाँ बुला लेता हूँ और आपको समझा देगा कि इसके जहन में क्या है। नहीं, शुक्रिया। हाथी साहब हाथ हिलाकर बोले, जो कुछ इसके जहन में है इसे इसके जहन में ही रहने दो। वो तो बस मुझे कायल करने की कोशिश करेगा, काम सही हो या गलत किसका क्या जाता है। रकम और इमारत तो मेरी तबाह होगी ना। बहुत समझाने बुझाने पर वो जाकिर से मिलने पर तो तैयार हो गई, लेकिन ऐन मुलाकात के वक्त इन पर फ्लू ने हमला कर दिया और ये फ्लू ऐसा था जिसकी अलामत किसी दूसरे को नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ इन्हें खुद को पता चला था कि वो फ्लू में मुब्तला हो चुके हैं। चुनाचे वो अपनी पसंदीदा पनाहगाह यानी बिस्तर में पनाहगज़ीन हो चुके थे और किसी कीमत पर बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। जाकिर साहब को बेनील मराम वापस जाना पड़ा। साबिरा बेगम मकान में तब्दीली के तस्वुर को एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाना चाहती थी, मगर अब ये आलम था। आतिफ साहब इस तस्करे को ख़त्म करने पर तैयार नहीं थे। वो रोज़ाना कम से कम 5 नए जवाब तलाश कर लेते थे जिनकी बना इनके ख्याल में मकान में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी। एक माह बाद समीना और मंसूर कोई नई तजवीज़ लेकर आए, लेकिन आतिफ साहब वो तजवीज़ सुनने से पहले ही बोल उठे, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे बारे में सोचते हो, लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हम जिस हाल में हैं इसी तरह ठीक है। मंसूर बेहद ठंडे मिजाज का आदमी था, लेकिन इस मौके पर गोया इसका सब्र व ज़ब्त भी जवाब दे गया। यकलक तो तकरीबन चिल्ला उठा, तो फिर आप लोग हर वक्त ज़िंदगी की तकलीफ़ों का रोना क्यों रोते रहते हैं? आपकी फ़िक्र में समीना को रातों नींद क्यों नहीं आती? आतिफ हुसैन को जैसे सत्ता सा हो गया। फटी सी आंखों से वो मंसूर को देखते रहे।
मंसूर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, तब भी वो कुछ ना बोले। साबरा बेगम इन्हें रुखसत करने दरवाजे तक आई। इनकी आंखों में तफक्कुरात के परछाइयाँ लहरा रही थी, क्योंकि इन्हें मालूम था इन्हें अब कुछ सुनना पड़ेगा। इस रात बिस्तर पर लेटने के बाद आसिफ साहब देर धाड़े मार मार कर रोते और बीन करने के अंदाज में इस रात बिस्तर पर लेटने के बाद आतिफ साहब देर तक धाड़े मार मार कर रोते रहे और बीन करने के से अंदाज में कहते रहे, इतने वर्षों तक मैं इस शख्स को इतना नेक और शरीफ समझता रहा, मुझे क्या मालूम था कि यह किस कदर नीच शख्स है। गज़ब खुदा का। कहता है कि समीना हमारी वजह से परेशान रहती है। मैंने तो समीना को परेशान करने के लिए कभी एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। साबिरा बेगम धन साधे खामोश बैठी रही। वो ठीक ही कह रहे थे। इन्होंने बराह रास्त तो शायद कभी कुछ नहीं कहा था। वो तो हर बात का रोना साबिरा बेगम के सामने रोते थे। वो समीना से जिक्र करती थी और समीना मंसूर से कहती। मंसूर ने आज तमाम मलबा वहाँ ला फेंका था जहाँ से वो चला था। मुसीबत ये थी कि अब सारी बातें सिर्फ साबिरा बेगम को सुनना पड़ रही थी। दो चार दिन गुजरने के बाद उन्होंने समीना को बताया कि आजकल उठते बैठते मंसूर के मुतालिक शिकवे सुनने पड़ रहे हैं। अगर मंसूर आकर माजरत कर ले तो शायद इनकी कुछ जान बख्शी हो जाए। समीना ने घर जाकर मंसूर से जिक्र किया, जो अपने टखने पर दवा की मालिश कर रहा था। इसने टखने पर मोच आई हुई थी। वो नागवारी से बोला, तुम्हारे अब्बू एक खुदगर्ज इंसान है, जिन्हें तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की खतन कोई परवाह नहीं है, और तुम दोनों में इतनी ज़रूरत नहीं है कि इन्हें इनकी खुदगर्जी एहसास दिला सको। इनसे ऐसी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंसूर इन्हें डिप्रेशन का दौरा पड़ जाता है और अम्मी को मज़ीद मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ती है। समीना ने कहा। इसके समझाने बुझाने पर बल आकर मंसूर उठा और कार में बैठकर ससुराल की तरफ चल दिया ताकि बड़े मियाँ से माजरत कर सके। गर्मियाँ आई तो समीना काफ़ी अरसे बाद शौहर और मियाँ समेत चंद दिनों के लिए वालिदैन के घर आई। आतिफ हुसैन और साबिरा बेगम जब दोनों से इन सब को रहने के लिए बुला रहे थे, ये सब इनके लिए आ गए थे, तो घर के शब व रोज़ हंगामा परवर से हो गए। ऊंची आवाज़ में बातें की जाती, बहस व तकरार मुबाहिसे होते, लूडो खेली जाती। आतिफ हुसैन अक्सर आँख बचाकर बेईमानी से जीतने की कोशिश करते, मगर हमेशा पकड़े जाते। इसके बावजूद वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि कोई ना कोई हज़र तराशने की कोशिश करते। ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना जाता। आतिफ हुसैन इस पर खफा भी नहीं होते थे। समीना के बच्चे अपना सीडी प्लेयर घर से साथ लाए थे, जिसका आतिफ साहब ने करीब बैठ कर बगौर मुताला किया था। बहरहाल इन सब के आने से बूढ़े जोड़े की ज़िंदगी में मुसरफियत और मकसदियत इससे पैदा हो गई थी। कुछ सोचने, कुछ बोलने और कुछ ना कुछ करते रहने के बहाने पैदा हो गए थे। आतिफ साहब अब अपने ही कुंबे में मगन थे, और अगर कोई पड़ोसी इनके यहाँ आ जाता तो इन्हें सख्त गिरां गुजरता था। इतला घंटी बजती तो पहले वो खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटाकर बाहर झांकते, और अगर कोई पड़ोसी बाहर या पड़ोसन होती तो घटी घटी आवाज़ में साबिरा बेगम को हिदायत करते, छोड़ो, मत खोलो दरवाज़ा। ये लोग यूं ही बहाने से हमारे यहाँ चाय पीने आ जाते हैं। इन्हें अपने घर में एक प्याली चाय भी नहीं मिलती। साबिरा बेगम की हिदायत पर कतई कान ना धरती और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती, लोग खुलूस और हमदर्दी के तहत हमसे मिलने आते हैं, हमारी चाय पीने नहीं। एक हफ्ते बाद सब लोग वापस चले गए और इनकी ज़िंदगी में वही पहला सा सुकून, एकसानियत लौट आई। मौसम खज़ां आया। समीना ने बताया कि दिल्ली के कोने पर जो प्लाजा तामीर हुआ था वो मुकम्मल हो गया और बड़े खूबसूरत और आरामदार रहायशी अपार्टमेंट में मुश्तमिल है। चुनांचे क्यों ना इस मकान को बेचकर इस इमारत में एक अपार्टमेंट खरीद लें। साबिरा बेगम ने फटी फटी आंखों के साथ बेटी की तरफ देखा और ख़बरदार करने के से अंदाज में बोली, तुम्हें शायद हजरत हासिल नहीं हुई
जो मकान के सिलसिले में फिर तजवीज़ लेकर आई हो। इस वक्त तो अबू तोड़ फोड़ वगैरह से घबरा रहे थे। अब चूँकि ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा इसलिए शायद मान जाए। समीना ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा। हकीकत ये थी कि वो इनके लिए एक अपार्टमेंट बुक करा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से आतिफ साहब इस नई इमारत के मायने पर रजामंद हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने कम से कम 20 मरतबा ये जता दिया था कि वो कोई हतमी वायदा नहीं कर रहे हैं। इस इमारत का डिज़ाइन, नयापन और खूबसूरती देखकर आतिफ साहब बहुत मुतासिर हुए और बहुत देर तक बाहर ही खड़े इश करते रहे। भला फिर अंदर पहुँचे। अंदर बहुत बड़ी पार्किंग थी। एक खूबसूरत सा लॉन भी था जिसे आतिफ साहब ने बहुत पसंद किया। सीढ़ियाँ सफ़ेद मार्बल की थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। समीना के सहारे वो लिफ्ट तक पहुँचे। लिफ्ट बिल्कुल बेआवाज़ और बेसबक रफ्तार थी। आतिफ साहब इसकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने अपार्टमेंट का मायना किया। अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। पहले तो आतिफ साहब को वो छोटा सा महसूस हुआ क्योंकि वो एक तवील और इस मकान में रहने की आदत थी। लेकिन जब साबरा बेगम ने इन्हें समझाया कि बूढ़े जोड़े को आखिर इससे ज़्यादा जगह की ज़रूरत ही क्या थी, तो वो इनसे मुत्तफिक हो गए। अगर मुझे भी ज़्यादा ही खुली जगह में बैठने की ख्वाहिश महसूस हुई तो मैं नीचे लॉन में बैठ जाया करूँगा। उन्होंने खुद ही गोया अपनी उलझन का हल तलाश कर लिया। दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी बारीक बीनी से हर चीज़ का मायना किया। किचन में चमकता धमकता उम्दा कैबिनेट, खूबसूरत काउंटर और टूटियाँ भी जदीद साकत की थीं। दोनों बाथरूम्स भी झिलमिलाते टाइल्स और खूबसूरत चीज़ों से आरास्ता थे और बेडरूम से मुत्सल थे। हर एक चीज़ दूसरे से मुअल्लक़ थी। सामान उठाकर लंबे फासले तय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही यहाँ कोई इस फाजिल जगह थी जिसे देखकर आतिफ साहब को काट कुबाड़ा जमा करने की सोच थी। इस सारे आराम व आराइश के बावजूद अगर वो कभी बीमार पड़ जाते तो ऐसी जगह में इन्हें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती, बल्कि शायद बीमार पड़ना भी लुत्फ़ का बास होता। साबिरा बेगम को ये जगह अपने ख्वाबों की जन्नत महसूस हो रही थी। इन्हें याद आया कि जवानी में वो ऐसे ही घर के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन इनकी सारी ज़िंदगी तो इससे कहीं मुख्तलिफ और निहायत गैर आरामदाह मकानों में गुजर गई थी। लेकिन अब एक मामूम सी उम्मीद ने सर उभारा था कि शायद उम्र के आखिरी हिस्से में ख्वाबों की जन्नत में रहने का मौका मिल ही जाए। समीना इन्हें बता रही थी कि अपार्टमेंट में ट्रम्प का काम भी नस्ब है। नीचे आने वाले में इन्हें इंटरकॉम पर अपना नाम वगैरह बताएगा। अपार्टमेंट में इंटरकॉम भी नस्ब है। नीचे आने वाला पहले इन्हें इंटरकॉम पर अपना नाम वगैरह बताएगा और अगर किसी से मिलना नहीं चाहेंगे तो इसे नीचे से भी वापस जाना पड़ेगा। बहुत खूब, आतिफ साहब ने खुश दिली से ठेका लगाया। ये तो बड़े काम की चीज़ है। मायना करने के बाद वो घर वापस पहुँचे तो समीना ने पूछा, अबू क्या सोचा आपने इस सिलसिले में? भाई इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, आतिफ साहब मसरूर लहजे में बोले। वो तो वाकई बड़ी खूबसूरत इमारत है और अपार्टमेंट भी लाजवाब है। तो फिर आप अपार्टमेंट खरीदेंगे या किराए पर लेंगे? समीना ने पूछा। दोनों सूरतों में आपको वो अपार्टमेंट मिल सकता है। भाई क्या मालूम अब हमारी कितनी ज़िंदगी रह गई है, फिर मालूम नहीं कि इस मकान की कोई मुनासिब कीमत लगाएगा या नहीं। इसे जल्दबाजी में होने पौने दामों बेचते हुए मुझे दुख होगा। अपार्टमेंट खरीद कर हम क्या करेंगे? किराए पर ही ले लेते हैं, मगर इस मकान को मैं इस वक्त तक किराए पर दूंगा जब कोई अच्छा और शरीफ किराएदार मिलेगा। आप फिक्र ना करें अबू, समीना ने कहा। हम बाकायदा किराएदार का किरायानामा बनवाकर कानून के मुताबिक इस मकान को किराए पर देंगे। और वो अपार्टमेंट किराए पर हासिल करने के लिए क्या करना होगा, उन्होंने पूछा। इसके लिए आपको 6 माह का किराया बतौर डिपॉजिट जमा करना होगा। 1 महीने का किराया एडवांस होगा। इसके बाद आपको किरायानामे के कागजात पर
दस्तखत करने के लिए भेज दिए जाएंगे। समीना ने बताया। भाई ये अजीब बात है, किराया पहले अदा करें, डिपॉजिट भी दो। अगर मैं किराएनामे की शराइत से मुत्तफिक ना हुआ तो वो आपका डिपॉजिट वापस कर देंगे। समीना ने तमल से कहा। इसके बाद आतिफ साहब की चेक बुक निकल आई। चेक इसने लिखा और दस्तखत करने के लिए इनकी तरफ बढ़ाया। तब आतिफ साहब ने बादिल नाख्वास्ता चेक साइन किया। साबिरा बेगम और समीना ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। समीना हवा के दोस्त को उड़ती हुई अपने घर पहुंची और फ़ोन पर अपने शौहर और दीगर तमाम करीबी रिश्तेदारों को यह खुशखबरी सुना दी कि अम्मी और अब्बू नए अपार्टमेंट में मुंतकिल हो रहे हैं। रात को साबिरा बेगम का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि तमाम रिश्तेदार इन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। मंसूर, जो इस वक्त अखबार पढ़ रहा था, सर उठाकर बोला, समीना साहब, वाज़ह रहे कि अभी वालिद बुजुर्गवार ने किराया नामे पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसका अंदाज खबरदार करने वाला था। दूसरे दिन साबिरा बेगम का फ़ोन आया। आतिफ साहब किसी अहम सिलसिले में मशवरा के लिए बुला रहे थे। मंसूर इनके यहाँ पहुँचा तो पता चला कि अहम मसला ये है कि आतिफ साहब के ख्याल में अपार्टमेंट के बाथरूम छोटे हैं। मंसूर ने आतिफ साहब को साथ लिया और अपार्टमेंट में पहुंचकर फीते से बाथरूम नाप कर दिखाया। उसी लंबाई में इनके मौजूदा बाथरूम से 1 इंच छोटा था। खैर कोई बात नहीं, आतिफ साहब ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। इस खामी को मैं नज़रअंदाज करने की कोशिश करूँगा। इस रात जब साबिरा बेगम आराम से सोई थी, कोई खटका सा सुनकर इनकी आँख खुली। इसीलिए मैं इनकी चीख निकलते रह गई। कोई इन पर झुका हुआ था। वो तो गनीमत रहा कि साबिरा बेगम की चीख से पहले ओला खुद बोल उठा। अरे ये मैं हूँ आतिफ हुसैन। मैं ये कह रहा था कि लिफ्ट से निकलने के बाद हाल से बाहर आते हुए जो चंद सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं वो तो बेहद चिकनी है। इन सीढ़ियों पर से तो मैं किसी के सहारे के बगैर उतर ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि मैं अकेला तो कभी नीचे जा ही नहीं सकता। अगर अकेला नीचे गया तो मुझे लिफ्ट से बाहर आने के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई आए तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों से नीचे उतारे। ये तो बड़ा संगीन मसला है। साबिरा बेगम ने इन्हें तसल्ली देकर मुश्किल तमाम सोने के लिए आमेदा किया। वो हमेशा इनके साथ नीचे जाएंगी और इन्हें सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे उतारा करेंगी। दूसरी रात आतिफ साहब ने फिर बड़ी घबराहट के आलम में साबिरा बेगम को सोते से उठाया और मुतवस्सिल लहजे में साबिरा, इस अपार्टमेंट में कहीं कारण तो है नहीं? हम अपनी नाजुक चीज़ें और ये बड़ा सा कलाक कहाँ रखेंगे? साबिरा बेगम हाथ जोड़कर बोली, आतिफ साहब, खुदा के लिए मुझे सोने दें। जब हम इस अपार्टमेंट में जाएंगे तो क्लाक रखने के लिए भी कोई जगह मिली जाएगी। फिर आखिर किराए नामे के कागजात आन पहुँचे। आतिफ साहब ने इनका मुताला शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार किराएनामा पढ़ा और हर बार पहले से ज़्यादा भरम होते चले गए। गज़ब खुदा का, आखिर वो चिल्ला उठे, मालिका ने हर शक अपने ही फ़ायदे के लिए रखी हुई है, किराएदारों के तफ़्फ़त के लिए इसमें क्या है? उन्होंने तो किराया भी यकसा रखने की गारंटी नहीं दी, पहले ही जता दिया है कि इसमें इजाफा हो सकता है। लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो इसकी मरम्मत के लिए भी रकम अदा करनी पड़ेगी। मारे गुस्से के उन्होंने कागजात फर्श पर पटक दिए। वो तो इन्हें शायद पैरों से मसलने भी लगते थे, लेकिन साबिरा बेगम ने बर वक्त इन्हें फर्श से उठा लिया। समीना को फ़ोन किया। वो आई तो इसने आतिफ साहब से गुस्से से कांपते हुए पाया। वो समीना को देखते ही चिल्लाए, वो जो मैंने 6 माह का किराया बतौर डिपॉजिट दिया था, मुझे वापस चाहिए। देखिए, अपार्टमेंट अगर कभी ख़राब हुई तो अकेले आपको ही इनकी मदद नहीं करना होगी, वहाँ रहने वाले सारे लोग मिलकर मरम्मत का खर्च बर्दाश्त करेंगे। समीना ने बाप को समझाने की कोशिश की। और जहाँ तक डिपॉजिट का सवाल है, साबिरा बेगम ने समीना को इशारा किया कि इन्हें समझना फजूल है।
कोशिश की और यहाँ तक डिपॉजिट का सवाल है। साबिरा बेगम ने समीना को इशारा किया। इन्हें समझाना फजूल है। चंद लम्हे बाद वो समीना को एक तरफ लेकर गई और नीचे आवाज़ में नीचे आवाज़ में बोली, तुम अपने अब्बू को ज़बरदस्ती नए अपार्टमेंट में ले जाने की कोशिश मत करो। वो वहाँ मेरी ज़िंदगी अजरन कर देंगे। इन्हें आराम और रहायश की कोई ख़तर नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ भी आराम से ही हैं। तकलीफ़ तो मुझे उठानी पड़ती है। तुम इतने हायल करने की कोशिश मत करो। हमारी ज़िंदगी तो यहीं तमाम होगी, इसी मकान में। चुनाते आतिफ साहब को इनका अपार्टमेंट वापस मिल गया और उन्होंने सुकून के साथ चुनाते आतिफ साहब को इनका डिपॉजिट वापस मिल गया और इन्होंने सुकून की सांस ली। इन्होंने साबिरा बेगम को खदरे उदास देखा तो तसल्लियाँ देने लगे। देखो साबिरा, हमारा मकान इस अपार्टमेंट से लाख दर्जे बेहतर है। हमारे कमरे कितने कुशादा हैं, चलने फिरने के लिए कितनी जगह है। अपार्टमेंट तो मुर्गियों के डरबे होते हैं। देखो यहाँ हमारे कमरे में कार्नस भी है, और ज़रा देखो कार्नस पर हमारा शानदार किला कितने आराम से रखा हुआ है। हाँ, साबिरा बेगम तवील सांस लेकर बोली, इस घर में सिर्फ एक क्लार्क ही तो आराम से रह रहा है। चंद दिन बाद अपार्टमेंट वाला मामला भी किस्सा पारीना हो गया। साबिरा बेगम बजिद कोशिश बनाकर इस बात को भूल ही गई कि उन्होंने किसी आरामदाह घर में मुंतकिल होने का ख्वाब देखा था। इसी हफ्ते के इख्तिताम पर आतिफ साहब का इंतकाल हो गया। समीना ने अखबार में जो मजमून पढ़ा था वो दुरुस्त ही साबित हुआ कि बाज़ औक़ात बूढ़ों को एहसास तक नहीं होता और सर्दी इनके रगों पे में सरायत कर जाती है। सर्दी ने आतिफ साहब से लहू की हरारत छीन ली थी। सदमा बेशक जान का था, लेकिन बाला के लोग ऐसे सदमों से भी संभल ही जाते हैं। आते आते बेकरारी को करार आ ही जाता है। साबिरा बेगम को भी रफ्ता करार आ ही गया, लेकिन अब इन्हें बस चुप सी लग गई थी। घर में वहाँ कितने ही अफराद आ जाते और खामोश सी रहती। साबिरा बेगम की इद्दत पूरी होने वाली थी। एक रोज़ मौका मुनासिब पाकर समीना ने कहा, अम्मी आप अकेली यहाँ कैसे रहेंगी? इद्दत के बाद आप मेरे साथ मेरे घर चल कर रहें। साबिरा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, तुम्हें मालूम है बेटी, हम पुराने ख्याल रखने वाले वज़ेदार किस्म के लोग हैं। बेटियों के घर कभी नहीं रहते, फिर भला मैं अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? समीना को इनसे ऐसे ही जवाब की तौक़्क़त थी। इसने एक तवील सांस ली और बोली, तो फिर आप अपार्टमेंट में ही मुंतकिल हो जाएं। वहाँ कई अपार्टमेंट अब भी खाली हैं। अब तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा और ना ही कोई बात पर एतराज़ात उठाएगा। मैं किसी मुलाजिमा का बंदोबस्त भी कर दूँगी जो दिन रात आपके साथ रह सकेगी और ख़ुद भी रोज़ाना आपके पास आती रहूँगी। साबिरा बेगम ने मुज़म्मिल सी आवाज़ के साथ बेटी की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोली, अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? जिसके आराम की खातिर जाना चाहती थी वही नहीं रहा तो अब जाने का क्या फ़ायदा? मैं तो इस घर में बिल्कुल आराम से हूँ और चाहती हूँ ज़िंदगी अब यहीं तमाम हो जाए। अब यहीं तमाम हो जाए तो अच्छा है। इनकी आंखों में नमी झुनझुनाने लगी थी। वो बहाने से उठते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कहानी ख़त्म हो गई है।